हेलो एवरीवन, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवम पांडे एंड वी विल बी नॉट डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक स्टडी फ्लो थ्रू द एक्यूफर्स, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था ड्यूपिट्स थ्योरी का। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द थीम्स थ्योरी। ओके, दीज आर द रेफरेंस मटेरियल एंड देन नाउ वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट क्लास कि थीम्स थ्योरी में इन्होंने क्या डिफरेंट किया था फ्रॉम द ड्यूपिट्स थ्योरी। तो इन्होंने क्या किया था, ही अज्यूम्ड दैट the water is being discharged from this main well and he undertook the two observation wells here and he constructed these two observation wells to observe the drawdown. Okay, so these were the observation wells which were for the measurement of the drawdown. So the first drawdown which he measured here was S1 and S2. उसके comparison में जो यहाँ पे जो water level देखा गया, that is H1 and H2 in the two observation wells. जो water level height है, okay, of the static water level, that is small, this is this capital H here. ये आपको क्या है, this is the static water level और static water table. Alright, जो main well है वहाँ पे जो water level है that is HW and the drawdown is SW in the main well which is being pumped regularly. Okay, so this is the basic setup of this entire themes theory. अब इस थीम्स थ्योरी में हम दो केसेस डिस्कस करेंगे, अनकन्फाइंड एक्यूफर का और कन्फाइंड एक्यूफर का। अनकन्फाइंड एक्यूफर में यदि हम आगे बढ़ें, सो द डेरिवेशन इज सिमिलर टू द थीम्स थ्योरी विद द ओनली डिफरेंस हेयर दैट वी आर कंसिडरिंग द टू ऑब्जर्वेशन वेल्स। तो यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन वेल्स के आपके पास यहाँ पे रीडिंग देखने को मिलेगी। सो व्हाट हैपेंस, Q इज इक्वल टू KIA, दैट इज फ्रॉम द डार्सीज लॉ दैट यू हैव टेकन because of the laminar flow which usually occurs near the well surface. Okay, जहाँ well का ये portion है यहाँ पे usually laminar flow ही exist करता है because of what? Because of the grain particles or the soil particles which are present in there. Now if we solve this equation here, this K will come as it is, I is dH upon dr and A is 2 pi RH. Okay, so this is this. If I say that one element is considered here, okay, which is let's say at a distance of r, all right, at a distance of let's say r. So इस कॉलम के लिए आप क्या करेंगे, इस कॉलम के लिए जो ड्रॉडाउन है let's say this is S and the water level in this well is let's say H. तो इस कॉलम का जो एरिया है that is what 2 pi RH, जहाँ पे water is coming into this well. बिकॉज अगर आप इसको कंसिडर करते हैं दैट इट इज़ वन वेल विच इज़ सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द मेन वेल, तो इसमें पानी हर जगह से आ रहा होगा और कौन सा एरिया इसका पानी ले रहा होगा, ऑल दिस सर्कम्फेरेंस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल कॉलम। तो इसी तरीके से यहाँ पे दिस इज 2 pi RH एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दिस dr by r एंड देन 2 pi k upon k, you say it as integration H dH. So this is actually H dH. Now what you do when you integrate it between the limits r1 and r2 and h1 and h2. Why r1 and r2? Because you are considering the two wells, okay, r1 से लेके r2 के बीच में, all right. And when you talk about the y axis, तो यहाँ पे आप बात करेंगे h1 से h2 के बीच में, okay, h1 और h2 के बीच में. So when you solve it as when you integrate it, so you get ln r here 2 pi k by q h square by 2, जिसको आप यहाँ पे h1 से h2 की लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे और इन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल बी इंटीग्रेटिंग इन r1 से लेके r2 के डिस्टेंस में. नाउ व्हेन यू सॉल्व इट, दिस कम्स आउट टू बी q इज इक्वल टू पाई के h2 स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर अपॉन ln r2 बाय r1. सो दिस इज द डिस्चार्ज दैट इज बीइंग ऑब्टेन्ड via the unconfined aquifer by the use of Thiems theory. Okay, now let us see one more thing here कि you have obtained one formula here, okay, this is given by h2 minus h1 square, all right, in the formula C here, this is h2 minus h1 square. Now you know already कि this is h1, this is s1, okay, h2 and s2. यदि मैं यहाँ पे ऐड करूँ इन दोनों ही को तो ये किसके बराबर आएंगे, ये h के बराबर आएंगे, यानी कि h1 plus s1, see in the diagram here, h1 plus s1, h1 is this one और s1 is this one. तो इन दोनों को यदि आप ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, h के बराबर, दिस इज दिस h. सिमिलरली यदि आप h2 और s2 को ऐड करेंगे, h2 and s2, it will come out to be what h. So you can easily say that h1 plus s1 is equal to h2 plus s2. Okay, so this is one thing that you can see from the
diagram here. Now let us see in the other slide that we have this formula here. So if you want to check this one out, so you can break it down to two subparts, that is H2 plus H1 into H2 minus H1 using the basic algebra. But H2 minus H1 is equal to S1 minus S2. How? By this equation here. So you can take H on one side and S, the drawdown, on one side. So you can easily obtain this here. H2 minus H1 is equal to S1 minus S2. If the drawdown is small compared to the saturated thickness of the aquifer H, then H2 plus H1 can be considered to be equal to H. Okay, मतलब H2 can be considered as H and H1 is also considered to be H. यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि जो ड्रॉडाउन है, ड्रॉडाउन कौन सा, एक S1 है और एक S2 है, यदि S1 एंड S2 आर वेरी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू व्हाट H. लेट्स से S1 1 यूनिट का हुआ और S2 0.5 यूनिट का हुआ, ओके 1 यूनिट एंड दिस इज 0.5 यूनिट, और ये H जो है लेट्स से ये 1000 यूनिट्स का है, तो 1 इज़ वेरी मच लेस इन कंपेरिजन टू द 1000. तो जब 1 बहुत ही छोटा है 1000 के कंपैरिजन में, तो वी कैन इजीली अज्यूम कि H1 इज इक्वल टू व्हाट H and H2 is equal to what H. So these two are basically equal and they are comparable to the total saturated aquifer thickness. तो यहाँ पे यदि आप देखिए तो यही हमने अज्यूम किया है कि H2 और H1 is equal to what H. So this comes out to be 2 times H. So when you talk about this relationship here, H2 minus H1 square, H2 square minus H1 square, it comes out to be S1 minus S2, which is what, nothing but H2 minus H1. और H2 plus H1 को आपने क्या किया, आपने कहा कि ये 2H के बराबर है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया इसको 2H. So when you solve it, it comes out, this formula can be written like this, 2 pi kh into S1 minus S2 upon ln R2 by R1. So this is the formula that you have got in terms of what, in terms of the drawdown, in terms of drawdown. So these are the two basic formulas that you have seen here. One is in the term of the water level, and one is in terms of the drawdown, that is the S. So these are the two formulas. One more, this is the last formula that you saw in the last slide based on the drawdown here. यदि हम बात करें कि K into H, okay, this thing here, तो ट्रांसमिसिबिलिटी की जब हम बात करते हैं, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन दिस परमिबिलिटी एंड द सैचुरेटेड एक्यूफर की थिकनेस, जो कि आपको पता है कि H है. Okay, so this transmissibility is equal to K into H. So this discharge is given here as 2 pi T into S1 minus S2 upon ln R2 by R1. So this is the entire formula that we have derived in different terms basically. कि एक हमने H1 H2 के टर्म्स में बात करी, एक हमने बात करी ड्रॉडाउन के टर्म्स में, और एक हमने बात करी इन द टर्म्स ऑफ ड्रॉडाउन, यहाँ पे परमिबिलिटी के हिसाब से बात करी, यहाँ पे हमने बात करी इन द टर्म्स ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी. सो ये जो है कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमने यहाँ पे देखे अलग अलग फॉर्म्स में. ऐसे ही यदि आप डिराइव करना चाहें तो ऑन द सिमिलर लाइंस यू कैन ऑल्सो सॉल्व फॉर ड्यूपिट्स ऑल्सो. इसी सिमिलर जैसे यहाँ पे हमने ड्राइव किया है S1 S2 के लिए, उसी तरीके से आप ड्यूपिट्स के लिए भी कर सकते हैं. ओके, दिस इज नॉट द फॉर्मूला फॉर ड्यूपिट, बट इसी तरीके से किया जा सकता है. ओके, फॉर द कन्फाइंड एक्यूफर एंड द थीम्स थ्योरी, हाउ डू यू डू इट. कन्फाइंड एक्यूफर में क्या होता है, यहाँ पे भी एक इम्परमिएबल लेयर है इन द टॉप ऑल्सो एंड इन द बॉटम ऑल्सो. तो यहाँ पे दो जगह पे आपको इम्परमिएबल लेयर देखने को मिलती है. नाउ द कन्फाइंड लेयर थिकनेस इज व्हाट B, दैट इज द कन्फाइंड लेयर थिकनेस, कन्फाइंड एक्यूफर थिकनेस. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ऑब्जर्वेशन वेल, तो वहाँ पे जो वाटर लेवल है दैट इज H1 और दूसरे ऑब्जर्वेशन वेल में जो वाटर लेवल है दैट इज H2. जो मेन पंपिंग वेल है जहाँ पे द वाटर इज बीइंग विड्रॉन दैट इज दिस HW. Alright, these are the three observation that are being given in the figure. And the aquifer, the total thickness of the entire portion here is the H. और H क्या है, static water table की height है from the impermeable layer. So these are the two things that you can see here. Now let us talk about the derivation. वैसा ही similar concept है यहाँ पे. जो K है that is the permeability, I is the dH by dr, and A is the 2 pi B here. Okay, why you are taking this 2 pi B? Because of this saturated or the confined aquifer
thickness. This dr by r is equal to 2 pi kb upon q into dh. When you integrate it, तो आप इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? x डायरेक्शन में जब आप इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो r1 से लेके r2 की लिमिट्स रहेंगी. जब y की डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो आप h1 से h2 के डायरेक्शन में बात कर रहेंगे. ओके, इन द y डायरेक्शन. x डायरेक्शन में r1 से लेके r2 के बीच में. When you simplify it by integrating it, you get this relation here. Q is equal to 2 pi kb h2 minus h1 upon ln r2 by r1. तो यहाँ पे एक आपने एडिशनल टर्म देखा क्या कि यहाँ पे एक b टर्म एक आया है. So this b term is nothing but the confined aquifer thickness. So this is also contributing to the discharge ability of the aquifer. So this is the formula that you have seen in the last slide, this one. Now what you know that h2 minus h1 is equal to s1 minus s2 जो हमने अभी लास्ट में डिस्कस किया था इन द कन्फाइंड एक्यूफर केस, और ये सभी जगह पे ऐसे ही वैलिड रहेगा. ओके, इन द ऑल द केसेस. सो इफ यू वांट वी कैन डायरेक्टली कन्वर्ट इट हियर. ओके, जो हमने प्रीवियस थ्योरी पढ़ी थी वहाँ पे h2 स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर था, बट इन दिस केस यहाँ पे h2 माइनस h1 है जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पे s1 माइनस s2 लिख सकते हैं. सो यू कैन सी द फॉर्मूला हियर. q इज इक्वल टू 2 पाई kb इंटू s1 माइनस s2 अपॉन ln r2 बाय r1. Since the transmissibility is equal to k times b, so you can easily put this kb here as t here. So this formula comes out to be 2 pi t into s1 minus s2 upon ln r2 by r1. Let us now summarize the formulas. तो हमने बात किया क्या करी? हमने बात करी थी कि दो थ्योरीज हैं स्टेडी स्टेट फ्लो में, एक ड्यूपिट साहब की है और एक थीम साहब की है. अब दोनों लोगों ने अनकन्फाइंड के लिए भी थ्योरी दी और कन्फाइंड के लिए भी थ्योरी दी. ओके, दिस इज कन्फाइंड थ्योरी और अनकन्फाइंड थ्योरी. जितने भी फॉर्मुलेज हैं जो हमने देखे हैं उनके बारे में चलिए यहाँ पे हम देखते हैं इन बेसिक टर्म्स. हमने यहाँ पे ड्रॉ डाउन का फॉर्मूला नहीं लिखा है. ऑलराइट, यू कैन इजीली कन्वर्ट दीज फॉर्मुलेज इनटू द ड्रॉ डाउन फॉर्मूला. तो ड्यूपिट थ्योरी में जो आपने फॉर्मूला देखा वो ये था. थीम्स थ्योरी में आपने जो फॉर्मूला देखा वो ये था कन्फाइंड अनकन्फाइंड एक्यूफर के लिए. फॉर द कन्फाइंड एक्यूफर, फॉर द ड्यूपिट थ्योरी दिस वॉज द फॉर्मूला, एंड फॉर द दिस थीम्स थ्योरी दिस इज द फॉर्मूला. तो आप ये देख सकते हैं कि थीम्स थ्योरी में दो जो ऑब्जर्वेशन वेल्स लिए गए थे जिनका ड्रॉ डाउन आपको देखने को मिला था एज S1 एंड S2, उसका यहाँ पे आपको बेसिक फंडामेंटल दिख रहा है. यहाँ पे ड्यूपिट थ्योरी में जो हमने फिफ्थ अजम्पशन लिया था वो हमने लिया था रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस के आधार पे, और रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस एक आर्बिट्ररी कंसेप्ट था. ओके, सो दैट वाज नॉट वेरी मच प्रूफ, दैट वाज सॉलिड प्रूफ कि हाँ हम इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं. सो प्रैक्टिकली देखा जाए तो थीम्स थ्योरी इज मोर प्रैक्टिकल, ऑलराइट, विच इज गिविंग यू अ मच बेटर रिजल्ट. Now let us take a look on the numericals based on the concepts that we have studied in the last two classes. Okay, the tube well of 30 centimeter diameter penetrates fully in an artesian aquifer. The strainer length is 15 meter. Strainer क्या होता है? जो आप ट्यूबवेल की बात कर रहे होते हैं ना, when this is the well, so water has to enter into this pipe. तो ये पाइप जो है ना, this pipe is slotted pipe, यानी कि यदि आप इस पाइप के सर्कमफेरेंस में देखेंगे तो यहाँ पे स्लॉट्स बने होते हैं. स्लॉट किस लिए बने होते हैं? सो दैट वाटर कैन पेनिट्रेट इनटू दिस वेल. अच्छा, यदि यहाँ पे आपने स्लॉट्स बना रखे हैं, दे रखे हैं, तो आप ये भी चाहेंगे क्या कि यहाँ पे सॉयल पार्टिकल्स ना आए, या सॉयल पार्टिकल्स आएँ तो कम आए, तो इसीलिए स्ट्रेनर बनाए जाते हैं. और यहाँ पे स्ट्रेनर की लेंथ दे रखी है 15 मीटर. Calculate the yield from the well under a drawdown of 3 meter. Also, what is given to you, aquifer consists of sand of effective size of 0.2 mm, having the coefficient of permeability equal to 50 meter per day. Assume the radius of drawdown equal to 150 meter. So यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आर्टिशियन एक्यूफर की बात करी गई है. ओके, और दूसरी चीज़ यहाँ पे बात करी गई है कि द रेडियस ऑफ ड्रॉडाउन इज इक्वल टू 150 मीटर्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है ये रेडियस ऑफ ड्रॉडाउन, दैट इज r. तो व्हाट इज गिवन टू यू? फर्स्ट इज द रेडियस ऑफ द वेल. तो यदि मैं बात करूँ दिस इज द वेल, तो ये तो आपका रेडियस हो गया, दिस इज द रेडियस ऑफ द वेल. तो दिस इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर जो कि 0.15 मीटर हो गया. नाउ इट वाज गिवन टू यू कि ये आर्टिशियन वेल है. आर्टिशियन वेल है यानी कि ये जो कंसेप्ट है हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कन्फाइंड एक्यूफर की. वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्फाइंड एक्यूफर. सेकेंड पॉइंट दैट इज गिवन टू यू is drawdown, that is S is equal to 3 meters. Okay,
So drawdown is given to you as 3 meters. So this is the drawdown here. जो भी यहाँ पे drawdown होगा वो 3 मीटर का दे रखा है. एक और पॉइंट जो दे रखा है, that is permeability, that is given to you as 50 meters per day and the radius of influence is given to you as 150 meter. और आप ये जानते हैं कि radius of influence का कंसेप्ट किसने दिया था, वो दिया था ड्यूपिट साहब ने. So you will be using the Dupit's formula or the Dupit's theory to apply in this concept, okay, in this question here. तो confined aquifer का केस है, radius of influence आपको दे रखा है, so you can easily find out the discharge that is being there. Okay, so you can see here this formula is there for what, for the confined one, for the confined aquifer जिसकी thickness कितनी है, जिसकी thickness है b. ओके और यहाँ पे जो आपको लेंथ ऑफ स्ट्रेनर दे रखा है जो कि 15 मीटर दे रखा है, उसको यदि आप समझिए यहाँ पे डायग्राम में, तो ये क्या होगा, दिस इज दिस थिकनेस, क्योंकि पानी जो ऑब्टेन होना है वो कहाँ से होना है, इस थिकनेस से पानी ऑब्टेन होना है. तो आपको जो स्लॉटेड वेल देना होगा, जहाँ पे स्लॉट्स लगे हैं जिस वेल में, जिसमें स्लॉट्स बने हुए हैं बेसिकली वेल में, तो वो आपको इतनी थिकनेस के लिए ही देना है. ये नहीं कि आपको पूरे के लिए आपको स्लॉटेड वेल ही चाहिए, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज जो कन्फाइंड एक्यूफर है उसकी एक लिमिटेड थिकनेस है एंड दैट थिकनेस इज व्हाट, दैट थिकनेस इज 15 मीटर. तो उतनी डिस्टेंस के लिए यू हैव टू प्रोवाइड द स्ट्रेन्स और द स्ट्रेनर. सो व्हेन यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, जो के की बात करें तो दैट इज 50, द एक्यूफर थिकनेस दैट इज 15 एंड दिस h माइनस एच डब्ल्यू. अच्छा, जब भी हम h माइनस एच डब्ल्यू की बात करते हैं तो सी द डायग्राम हेयर, see the diagram here, this is the total thickness or I would say total height of the static water level, all right, this is the total height. तो this is the total height h. यदि मैं बात करूं कि कुछ इसमें से ड्रॉ डाउन हो गया and I subtract this thing, so this comes out to be what, this comes out to be hw. okay, तो यदि इतना ये s है, so if you see this thing here, this portion here, तो यहाँ पे you can easily write it down कि hw plus s is equal to what, h. okay, so h minus hw is equal to what, s. okay, this is the basic formula that you can derive. so इस केस में जो h minus hw है वो क्या हो जाएगा, वो s हो जाएगा and that drawdown is given to you, that drawdown is given to you as 3 meters. okay, and then ln r by rw, तो यहाँ पे जो कैपिटल r है, radius of influence that is 150 meters and this rw that is the radius of the well that is 15 centimeter या फिर 0.15 meter. This comes out to be what, this comes out to be what, 2046.56 मीटर क्यूब पर डे. क्योंकि परमेबिलिटी यहाँ पे मीटर पर डे में थी, इसीलिए हमारा जो पहला वैल्यू यहाँ पे निकल के आया है that is in terms of per day, and when you convert it in liters per second, it comes out to be 23.7 liter per second that this well will be discharging. all right, so let us now move on to the second numerical here. A 30 centimeter diameter well penetrates 25 meter below the static water level. After 24 hours of pumping at 5400 liters per minute, the water level in a test well at 90 meter is lowered by 0.53 meter, and एक other observation well is there, and in a well 30 meter away the drawdown is 1.11 meter. तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन वेल दे रखे हैं, एक 30 मीटर दूरी पे और एक 90 मीटर दूरी पे, और उन दोनों ही वेल में क्या ऑब्जर्व किया गया, ड्रॉडाउन देखा गया. ड्रॉडाउन कितना हुआ वो यहाँ पे आपको दे रखा है 0.53 मीटर और 1.11 मीटर. तो इससे आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि दीज आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, थीम थ्योरी, थीम्स थ्योरी. नाउ द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड हियर, व्हाट इज द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द एक्यूफर. सेकंड पॉइंट इज ऑल्सो डिटरमिन द ड्रॉडाउन इन द मेन वेल. दीज आर द टू थिंग्स दैट आर बीइंग आस्क्ड. तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ द वेल है दैट इज व्हाट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दिस इज पोर्शन. ओके, ये अनकन्फाइंड एक्यूफर है. तो जो यहाँ पे रेडियस ऑफ द वेल है, दिस इज दिस रेडियस ऑफ द वेल दैट इज व्हाट 0.15 मीटर. एच की वैल्यू जो है 25 मीटर है, तो जो स्टैटिक वाटर लेवल होगा, ओके, दैट इज 25 मीटर एंड लेट्स से दिस इज द ग्राउंड लेवल. एंड द डिस्चार्ज विच इज बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस वेल इज व्हाट 5400 लीटर्स पर मिनट. और इसके बगल में क्या किया गया है, दो ऑब्जर्वेशन वेल्स बनाए गए हैं. ऑलराइट, these are the two observation wells that are being constructed here. तो ये अनकन्फाइंड एक्यूफर का केस है और साथ ही में दो ऑब्जर्वेशन वेल्स का केस है. तो यू कैन इजीली अप्लाई द थीम्स फॉर्मूला यार. ओके, कुछ चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिए जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन वेल्स की. तो दिस इज द मेन पम्प्ड वेल, जो ये वाला वेल है, एंड देयर आर टू ऑब्जर्वेशन वेल्स. जो ऑब्जर्वेशन वेल है उसमें आपको जो ड्रॉडाउन की वैल्यू दे रखी है
वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डेट इज़ 1.11 मीटर फॉर द वेल डेट इज़ 30 मीटर अवे। और जो वेल 90 मीटर दूर है, डेट इज़ R2 90 मीटर दूर है, इसमें जो ड्रॉडाउन देखा गया डेट इज़ व्हाट, डेट इज़ 0.53 मीटर्स। तो R1 इज इक्वल टू 30 मीटर, उसके लिए S1 की वैल्यू 1.11 मीटर है, और R2 इज इक्वल टू 90 मीटर्स, जिसके लिए S2 इज इक्वल टू 0.53 मीटर। ये हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि आप H1 की बात कैसे कर रहे होंगे, बिकॉज दिस H1 प्लस S1 इज इक्वल टू व्हाट, द लेवल ऑफ वाटर ऑफ व्हाट, स्टैटिक लेवल, स्टैटिक वाटर टेबल लेवल, दैट इज द कैपिटल H हेयर। तो इसके बराबर ही होगा, ऑलराइट। तो दिस H1 प्लस S1 इज इक्वल टू H। तो इसके हिसाब से आप देखें तो आपके पास कैपिटल H की वैल्यू दे रखी है 25 मीटर, S1 की वैल्यू आपके पास दे रखी है, यू कैन इजीली फाइंड आउट द स्मॉल h1। तो दिस इज द वाटर लेवल इन द ऑब्जर्वेशन वेल 1 एंड दिस इज द वाटर लेवल इन द ऑब्जर्वेशन वेल 2। तो ये आपके पास दो ऑब्जर्वेशन वेल है जहाँ पे आपको दोनों के पास जितना भी वाटर लेवल है H1 और H2 वो आपको यहाँ पे पता चल गया। नाउ अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, बिकॉज ये कौन सा वेल है, अनकन्फाइंड एक्यूफर है। दूसरी बात, यहाँ पे टू ऑब्जर्वेशन वेल्स आर देयर, तो उसके कारण आपने थीम थ्योरी यहाँ पे अप्लाई करनी है। सो Q इज इक्वल टू पाई के इंटू H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर अपॉन ln R2 बाय R1। सो व्हेन यू अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर, सो दिस Q इज गिवन टू यू एज 5400 लीटर पर मिनट। जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 0.09 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो व्हेन यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, R2 इज गिवन टू यू, R1 इज गिवन टू यू। R2 कितना है, जो दूसरा वेल है ऑब्जर्वेशन वेल, कितनी दूरी पे है, 90 मीटर दूरी पे है। जो R1 है वो कितना है, 30 मीटर, जो पहला ऑब्जर्वेशन वेल है। ऑब्जर्वेशन वेल कितनी दूरी पे है। H2 स्क्वायर और H1 स्क्वायर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज हमने H1 और H2 की वैल्यू डिटरमिन कर ली है। एंड द ओनली अननोन थिंग विच इज देयर, इज द वैल्यू ऑफ दिस परमेबिलिटी। तो K की वैल्यू यू कैन इजीली फाइंड आउट बाय दिस इक्वेशन। So the transmissibility is equal to what, K into H here. So when you find out the value of K and you multiply it by the H value, so this comes out to be what, the transmissibility value 0.0281 meter square per second. Okay. So at the well phase, if you talk about, in the well phase R1 is equal to RW, you can easily know this thing कि वहाँ पे जो distance है वो क्या है, RW है। If I say this is the main pumping well, और इसके बगल में दो ऑब्जर्वेशन वेल्स थे, फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, और ये इसका कोन ऑफ डिप्रेशन रहा, और ये दिस इज द वाटर टेबल, ये इसका वाटर टेबल है, ऑलराइट। सो दिस, तो यहाँ पे दिस इज RW है, यहाँ पे जो पहला रेडियस है उसको मैं अगर R1 की जगह RW ले लेता हूँ और H1 की जगह मैं HW ले लेता हूँ। HW क्या होगा, जो भी मेन वेल में वाटर का लेवल है, दैट इज़ द HW। एंड नाउ आई अप्लाई द फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि अब मैं इस मेन वेल की बात करना चाह रहा हूँ। अभी तक मैंने ऑब्जर्वेशन वेल का इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे उसके डेटा की ज़रूरत थी, बट अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एक तो मैं मेन वेल की बात करूँगा और एक मैं कोई और वेल ले लूँगा। लेट्स से अगर मैं 90 मीटर वाले को ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक। तो Q इज इक्वल टू पाई के H2 स्क्वायर माइनस HW स्क्वायर अपॉन ln R2 बाय R1। तो अभी जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं उसमें हम दो वेल को यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से, एक तो मेन पंप वेल को और जो सेकंड वेल है ये सेकंड ऑब्जर्वेशन वेल को। दीज आर द टू वेल्स दैट आर बीइंग यूटिलाइज्ड हियर। तो इन दिस केस हमें K की वैल्यू पता है, हमने अभी लास्ट में निकाला ही था जो हमने प्रीवियस पार्ट सॉल्व किया इसका, एंड देन ln R2 बाय RW, तो दैट इज़ 90 जो सेकंड ऑब्जर्वेशन वेल है, एंड दिस इज द RW जो कि मेन पम्प्ड वेल है। So by this you can easily find out the value of HW. So this HW comes out to be 20.87 meter. तो जो हाइट ऑफ वाटर है मेन वेल में दैट इज 20.87 मीटर। तो यदि आप डायग्राम के हिसाब से समझिए तो इफ आई से दैट दिस इज द ग्राउंड लेवल एंड दिस इज द स्टैटिक वाटर टेबल, और यहाँ से दिस इज द Q एंड दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वेल एंड दिस इज द सेकेंड ऑब्जर्वेशन वेल, ऑलराइट, दिस इज द ऑब्जर्वेशन वेल। तो जो भी यहाँ पे ड्रॉडाउन आपको देखने को मिला, जो भी आपको ड्रॉडाउन यहाँ पे देखने को मिला, दिस इज द HW, और जो टोटल थिकनेस थी दैट वाज व्हाट, H, ऑलराइट। सो जो आपको ड्रॉडाउन देखने को मिला होगा वो क्या होगा, दिस S, और यही आपको S निकालना है इस मेन पम्प्ड वेल में। सो दिस HW इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, 20.87 मीटर। तो इस मेन पम्प्ड वेल में जो वैल्यू आपको निकल के आई वो थी कितनी,
20.87 एंड द वैल्यू विच वॉज हेयर इट वॉज वॉट 25. तो जो ड्रॉ डाउन है वो आप इजिली निकाल सकते हैं. दिस ड्रॉ डाउन कम्स आउट टू बी वॉट H माइनस HW. दिस कम्स आउट टू बी 25 माइनस 20.87. दिस कम्स आउट टू बी 4.13 मीटर. तो जो आपने पंपिंग करी तो जो ड्रॉ डाउन मेन वेल में देखा गया वो 4.13 मीटर का देखा गया. So that much water was withdrawn in terms of the height when you are considering the drawdown. So with this we come to an end of these two numericals and this is the topic of partially penetrating aquifer. अब दो तरीके के एक्यूफर हैं जहाँ पे हम बात करेंगे फुली पेनिट्रेटिंग एक्यूफर की और पार्शियली पेनिट्रेटिंग एक्यूफर की. यदि आप इस डायग्राम में देखें सो यहाँ पे यदि आप इम्परमेबल लेयर तक जाते हैं एंड द एक्यूफर इज़ फुली पेनिट्रेटेड देयर एंड सेकेंड डायग्राम में यदि आप देखिए इट इज़ अ पार्शियली पेनिट्रेटिंग एक्यूफर जहाँ पे जो परमेबल लेयर है इम्परमेबल लेयर है यहाँ पूरे तक दिस एक्यूफर इज़ नॉट रीचिंग. So these are the two types of aquifers which we will be covering in the next class. Thank you for today.